नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। रेसलर विनेश फोगाट का ओलंपिक में गोल्ड जीतने का सपना टूट गया है। तय कैटेगरी में ज्यादा वजन होने की वजह से विनेश फोगाट को ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेलती हैं और बुधवार को उनका वजन करीब 100 ग्राम ज्यादा मिला। इसके बाद उन्हें ओलंपिक महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कर बाहर कर दिया गया और अब विनेश 50 केजी कैटेगरी की विमेंस रेसलिंग का फाइनल नहीं खेल पाएंगी। उन्हें कोई मेडल भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। साजिश का भी आरोप लगा है और क्या विनेश फोगाट के साथ कोई साजिश हुई है? विनेश के बाहर होने की जिम्मेदारी कौन लेगा? और ऐसे ही कुछ और सवाल भी हैं जिस पर हम सीधे जनता के साथ चर्चा करेंगे ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। It's a black day for Indian sports. पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया। सिल्वर मेडल आने के बाद, अधिकृत होने के बाद इस प्रकार से क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सरकार को पूरा इस पर स्टैंड लेना चाहिए। डिस्क्वालीफाई कर दी दिनेश, तो बड़ा दुख हुआ, सारे देश को दुख है इस चीज का। ओलंपिक गोल्ड जीत सकते थे इसमें, तो ये क्या कारण हुआ कि वहां पहुंचते हुए एकदम कैसे वेट बढ़ गया? ओलंपिक से बाहर हुई हैं। जिस तरह से कल उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया, आज भी भारतीयों को उन पर गर्व है। इतनी टेक्निकलिटी में लकीर का फकीर बनने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार को भी इसके लिए बहुत जबरदस्त पहल करनी चाहिए। यहाँ तक पहुँचना, फाइनल नहीं खेल पाना, ये ऐसी चीज को पहुँचाने के लिए भारत की and we wanted to try the best, so we got her weight done right at the end at around 729. It was unfortunately 100 grams over 50 kilograms. If we maybe had a few hours more, we could have achieved that 100 grams, but we just didn't have that time. Now, once she was disqualified, then the question was, as a precautionary measure, we do need to rehydrate her. And the best way to rehydrate an athlete is by giving an intravenous fluid. So we gave her a few intravenous fluids. She started eating and drinking. She's passed urine, and she's otherwise perfectly normal, physically and medically. We've got her blood tests done just as a precautionary measure. We always do that. That's a routine. And those blood tests are also okay. And Vinesh, of course, has interacted with IOA President Dr. Mrs. P.T. Usha, and she's told her that, look, physically and medically I'm okay, but of course, undoubtedly she's disappointed. This is her third Olympics. She was really keen to try and do something for the country, but because of this 100 grams has been disqualified. Dr. Badiwala, this is Viman Mohan for the team. I just wanted to ask, because she has fought in this weight category earlier also, and this happens to all across the world. She's not the only athlete or only wrestler who has come through this process. Has it happened, I mean this time, has it happened for the first time with her, or do you have any precautionary measures so that it doesn't happen to other wrestlers? I mean, somebody has to take some responsibility. See, I think we need to remember that every human being is a little different. Every human being is going to be a little different from weight loss. Males are different from females. Age makes a difference. All this makes a difference. What's also important to remember is that usually you have a normal or a natural weight, and that's your normal natural weight, and you can cut that down. And typically till February of 24, she was participating in the 53 kilogram weight. So normally an athlete or a wrestler like her will be about 55, 56 and will go to the 53 weight, and that's the normal sort of process. And she was very comfortable with that process. But from February, because that category had already been occupied, and as you know, if only one wrestler from a country can go into one weight category. So since that weight category was already taken by another wrestler,
she had two options. Either she cuts her weight down tremendously and tries to go to the 50 category, or she goes a weight up. तो ओलंपिक के डॉक्टर ये पूरी जानकारी दे रहे हैं क्योंकि विनेश फोगाट जो हैं वो बेहोश हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया। और माहौल टाइटे देख रहे हैं आप, अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त पब्लिक के साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से, सबसे पहले उनके पास चलते हैं। तुषार, क्योंकि गोल्ड का सपना था और 100 ग्राम भारी पड़ गया, ऐसे में कैसे लखनऊ की जनता इसे देख रही है? क्या उन्हें लगता है इस मामले की जांच होनी चाहिए या फिर उन्हें भी साजिश नजर आ रही है जैसे कि विपक्ष कह रहा है? पूरा देश उत्साहित था इस बात को लेकर कि विनेश फोगाट फाइनल जीत कर आएंगी और बैक टू बैक जो पदक है वो लेकर आएंगी। इसको लेकर तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, लखनऊ के लोग हैं। 100 ग्राम भारी पड़ गया विनेश फोगाट के ऊपर, जीत रही थी, फाइनल में जा रही थी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस ओलंपिक में जो भी मतलब जो कुश्ती था उसमें किसी भी वर्ग में ये पहली ऐसी महिला थी जो मतलब पहुंची थी फाइनल में। और जिस तरह से मतलब ये केवल 100 ग्राम वो जो वजन का दिखाया गया है, ये कहीं ना कहीं पूरे 140 करोड़ भारतीय जो लोग हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत मायूस है, जो ये सोच रहे थे कि एक पदक आएगा, एक बेटी, हिंदुस्तान की बेटी आएगी। कहीं ना कहीं वो राजनीति के शिकार हो गई है। क्या विनेश फोगाट के साथ साजिश की गई है? बिल्कुल विनेश फोगाट के ऊपर साजिश की गई। ये देश के लिए गौरव की बात है कि पहली बार भारतीय महिला ओलंपिक में के फाइनल में पहुंची थी। इसके साथ ओलंपिक वालों ने साजिश करके इसकी वजन मैच के बाद वजन को वेट कराया, उसके बाद से इनको निकाला गया है। बिल्कुल ये विनेश फोगाट के ऊपर साजिश चल रही है। ओलंपिक वाले पहले से ही भारत को ओलंपिक खेलने देखना नहीं चाहते हैं और वो विनेश फोगाट एक पहली महिला थी जो वर्ल्ड चैंपियन को 3 बार हराया, 3 और लगातार 3 मैच जीती। इसके लिए गौरव की बात विनेश फोगाट के लिए। विनेश फोगाट को जिस तरह से मैच से अयोग्य घोषित कर दिया गया, वो फाइनल में जा रही थी, क्या लगता है इसके पीछे कोई साजिश है? बिल्कुल इसके पीछे सरकार की बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि ये विनेश फोगाट 2 बार जो है स्वर्ण पदक और 3 बार कांस्य पदक भी जीत चुकी हैं, तो सरकार इनके खिलाफ साजिश कर रही है। क्या कहेंगे, विनेश फोगाट के खिलाफ ओलंपिक में साजिश किया गया, जिस तरह से उन्हें 100 ग्राम को लेकर बाहर कर दिया गया? देखिए, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है जिसकी जांच होनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं कैसे हो गई, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा दिन भारत के लिए होने वाला था और हम सब भारतीय बहुत मतलब मायूस हैं इस वजह से, इस घटना से। अच्छा, 100 ग्राम क्या विनेश फोगाट के ऊपर भारी पड़ गया? क्योंकि जिस तरह से विनेश फोगाट ओलंपिक के फाइनल में पहुंची थी, रजत जीत चुकी थी, अब उनका फाइनल जीतने की बारी थी। पूरे देश की जनता इस उम्मीद से थी कि विनेश फोगाट जीत हासिल करेंगी और उनको अब अयोग्य घोषित कर दिया गया है। सर, ये पूरी तरीके से साजिश किया जा रहा है, क्योंकि पहले ओलंपिक के नियम रहे हैं कि मैच से पहले वेट किया जाता है। इसमें मैच जीतने के बाद वेट करके डायरेक्ट रिजल्ट लाना कि इस तरह की चीज़ें आई, इस तरह पूरी तरीके से उनके खिलाफ साजिश किया जा रहा है, जिसकी निष्पक्ष रूप से जाँच होनी चाहिए। ये वही महिला है जिनको रोडों पर घसीटा गया था, भारत की सड़कों पे कुचला गया, घसीटा गया, बहुत सारे आंदोलन हुए, इसके बाद इस जगह पहुंचना बहुत बड़ी चीज़ें हैं। विनेश फोगाट के साथ कहीं ना कहीं बहुत गलत किया जा रहा है, जिसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। ठीक है तुषार, आप बातचीत जारी रखिएगा, लोगों के साथ हम वापस आते हैं। दिनेश मिश्रा वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, वाकई में जिस तरीके से गोल्ड के बेहद करीब थी और मैच जीतते जीतते वो हार गई हैं, तो उससे न सिर्फ देशवासियों को धक्का लगा है, हर हिंदुस्तानी का दिल टूटा है। वाराणसी की जनता क्या सोचती है? क्या वाकई में उनको लगता है कि उनके साथ ये साजिश हुई है, राजनीति नजर आ रही है इस पर? बिल्कुल, हम इस समय वाराणसी, हमारे साथ वाराणसी के कुछ लोग मौजूद हैं। हालांकि वाराणसी के लोग भी काफ़ी दुखी हैं, जहां पूरा देश दुखी है। मात्र एक कदम दूर रह गई थी विनेश फोगाट से स्वर्ण पदक, और ओवरवेट के चलते 100 ग्राम वजन के चलते उनको हटा दिया गया। तो अब हम जानते हैं वाराणसी के लोगों से कि उनका क्या कुछ इस मामले में रिएक्शन है, क्या कुछ सोचना है। विनेश फोगाट को, जो कि एक कदम दूर थी लगभग स्वर्ण कप के, तो क्या कुछ मानना है? क्या साजिश हुई थी? देखिए इसमें पूरी तरह से साजिश की बू आ रही है और तत्काल खेल मंत्रालय को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। हम बनारस के अधिवक्ता ही नहीं, पूरा देश मर्माहत है इस घटना से। इसमें तत्काल हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, नहीं तो ऐसे ही अभी और भी हमारे खिलाड़ी बाकी हैं, उनके साथ भी यही होने वाला है। आपका क्या कुछ मानना? विनेश फोगाट के साथ जो हुआ है उसको लेकर क्या कुछ कहना आपका है?
देखिए, हमारी जो रेसलर विनेश फोगाट जी हैं वो वाकई में फाइनल में गोल्ड लेने वाली थी। सारी जनता उससे उत्सुक था, हमारे यहाँ गोल्ड आने वाला है, लेकिन ये कोई निश्चित राजनीति इसमें हुई है जिसकी वजह से इस तरीके का ये हुआ। 100 ग्राम वजन कोई ज़्यादा नहीं, सेमीफाइनल जीत के जा रही है, उस समय वजन नहीं है उसका, उस समय वजन सही है, उसके बाद वजन ज़्यादा हो जाता है, इस आधार पर छाटा जाता है। अगर साजिश हुई तो अब क्या कुछ होना चाहिए इसके लिए? सरकार को क्या कुछ सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और यहाँ यहाँ सांसद प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील है कि उसमें इंटरफेयर करें और हस्तक्षेप करके और उसका जांच करके जो वास्तविकता है उसको लाए, ताकि उससे सरकार के ऊपर जाएगा कि इसमें राजनीति हो या ना हो, लेकिन चला जाएगा संदेश। तो इस संदेश को रोकने के लिए तुरंत इंटरफेयर। दीपक जी, विनेश फोगाट मात्र चंद कदम दूर रह गई अपने गोल्ड उससे, जो है ओवरवेट हो गई, 100 ग्राम वजन। क्या कुछ मानना है आप लोगों का? क्या कुछ अब देखिए, ये एक विश्व का गेम हो रहा है, ओलंपिक गेम हो रहा है, ये कोई गली का गेम नहीं हो रहा है। और यहाँ से एक रेसलर, एक खिलाड़ी अपने आप को पूरा प्रिपेयर करके उस स्थान पे पहुँचती है। उसके लिए भारत सरकार द्वारा डाइटर, उसके लिए चिकित्सा अधिकारी, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं दी जाती हैं। और ऐसी स्थिति में ये कह देना कि 100 ग्राम उसका वेट ज़्यादा है और इसलिए वो अगले प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएगी, ये उस बेटी का नहीं, ये पूरे भारत देश का अपमान किया गया है। और विश्व पटल पर अगर इस तरीके का अपमान किया गया है तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री और खेल मंत्री को तत्काल यहाँ से वहाँ जाना चाहिए। और ठीक है दिनेश, आप बातचीत जारी रखिएगा। वापस आते हैं आपके पास। आलोक कुमार गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, एक दिन में 3-3 मैचेस का जीतना और उसके लिए एक भी मेडल नहीं, सीधे 100 ग्राम वेट बढ़ा तो उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो जाना, ये जिम्मेदारी किसकी है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? गाजीपुर की जनता क्या सोच रही है? जी बिल्कुल, गाजीपुर से हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो सभी खिलाड़ी हैं। हम एक बार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। सारे लोग जो है कहीं ना कहीं रेसलर, पहलवानी, इस तरह की खेलों में ये भाग लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सबसे शुरुआत करते हैं यहाँ पे जो ट्रेनर हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के गेम भी इन्होंने शामिल किया है। इन्होंने से जानेंगे। संजय जी, अपना एक बार परिचय देते हुए। मैं संजय राय, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में गेम टीचर हूँ। सर, जो इस समय विनेश फोगाट की बात चल रही है, 100 ग्राम वजन की वजह से जो है डिस्क्वालीफाई कर दी गई, जबकि 3 बार उन्होंने जीता था। क्या लगता है किस तरह के? देखिए, कुछ लोग पर साजिश है, अभी हमने सुना टीवी पे। साजिश नहीं हो सकती, हो भी सकती है तो बात की बात है, लेकिन हमारे देश का एक मेडल कम हो गया और हम सभी खिलाड़ी बहुत मायूस हैं। जब से ये न्यूज आई कि विनेश फोगाट को बाहर कर दिया गया तो सभी खिलाड़ी मायूस हैं। हमारे साथ बातचीत करने की कुछ यहाँ पे महिला खिलाड़ी भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? श्रेया सिंह। हमारा एक मेडल कम हो गया, ये बहुत बुरा हुआ है उनके साथ, बहुत ज्यादा। क्या होना चाहिए? उनको सेलेक्ट कर लेना चाहिए था सर, ये बहुत आपको क्या लगता है? क्या नाम है? क्या लगता है कृतिका जी, जिस तरीके से विनेश फोगाट के साथ हुआ? 100 ग्राम पर जितना वो खेल में अच्छा थी, उनको उस हिसाब से उनको सिलेक्ट कर लेना चाहिए। ये देश के लिए बहुत बुरा है। संजय जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक तरह से राजनीति हो रही है, तमाम तरह के लोग आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं और ये गलत हुआ ऐसा बता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ओलंपिक जो वहाँ चयन करता है, उन्होंने 100 ग्राम वजन की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। देखिए, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन का एसोसिएशन का एक नियम, आप किसी जब भी लड़ने जाएंगे तो आपको पहले बॉडी वेट होगा, तभी बॉडी वेट होगा। आप तो क्वालिफाई करके गए ही हैं आपके ग्रुप में, तो पहली बार जब बॉडी वेट देंगे आपको 30 मिनट का समय मिलता है। वजन बढ़ गया, कम कर लीजिए, कम है बढ़ा लीजिए। दूसरे दिन लगातार आपका खेल है तो सिर्फ 15 मिनट का समय मिलता है। उस दिन भी आपका बॉडी वेट बढ़ा है तो आप घटा सकते हैं, लेकिन 15 मिनट का समय मिलता है। हो सकता है इस कारण से, समय कम मिलने के कारण से बॉडी वेट नहीं कम कर पाई हो और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। लेकिन 100 ग्राम की जो बात आ रही है, जब सेमीफाइनल में जब उन्होंने खेला था तो बिल्कुल परफेक्ट थी और उन्होंने मात दी और फाइनल के लिए तैयार हुई, एक गोल्ड की तैयारी भारत के लिए थी। उस दिन बॉडी वेट सही रहा हो, अगले दिन बॉडी वेट 100 ग्राम बढ़ गया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 ग्राम 200 ग्राम घट बढ़ दोनों सकता है, लेकिन खिलाड़ी उसको मेंटेन करके चलता है। अब संजोग की बात, ठीक है अतुल, लगातार अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं, आप बातचीत जारी रखिएगा। रामानुज के पास चलते हैं, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, ना सिर्फ एक बड़ा झटका विनेश फोगाट को लगा है, बल्कि इसके अलावा यहाँ पर हर हिंदुस्तानी का दिल भी टूटा है। क्या वहां की पहाड़ की जनता सोच रही है? क्या लगता है इसके पीछे कोई साजिश है, राजनीति हुई है उनके साथ?
दिव्या, उत्तराखंड के जो युवा खिलाड़ी हैं वो हमारे साथ में हैं और चूंकि ओलंपिक के फाइनल में जिस तरह से विनेश फोगाट पहुंची और उम्मीद थी सबको कि एक कम से कम एक मेडल और मिलेगा और मेडल की जो फहरिस्त है वो बड़ी होगी, लेकिन युवा खिलाड़ी क्या सोचते हैं इनसे भी जान लेते हैं। आप लोगों को क्या उम्मीद थी? जब आज हमें पता चला न्यूज़ में कि विनेश फोगाट जी जो एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हमारे एथलेटिक्स की, रेसलिंग में हमें इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी पेरिस 2024 ओलंपिक्स में, उनको 100 ग्राम वेट की वजह से, ओवर वेट की वजह से उनको बाहर निकाल दिया गया। तो हम सभी को पता चला कि एक मेडल की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। सो यही सजेशन है कि हमारे कंट्री में ज़्यादातर लोगों को फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल इंपॉर्टेंस पे ध्यान नहीं दिया जाता। बिल्कुल, फिजिकल एजुकेशन और फिटनेस बहुत ज़रूरी है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या होता बेहतर होता? आई हैव ऑलवेज टेकन थिंग्स फॉर ग्रांटेड, बट नाउ आई नो हाउ इम्पोर्टेंट टू बी फोकस्ड। और अगले टाइम हम लोग, हमारे एथलीट्स और ज़्यादा मेहनत करेंगे और हम लोग गोल्ड ज़रूर जीतेंगे। गोल्ड जीतेंगे, मेहनत करेंगे, अब मेडल आएगा। क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम ये सोच रहे थे कि इस बार हमको पहला हमारा गोल्ड मेडल इस ओलंपिक्स का हमको मिलेगा, लेकिन सिर्फ 100 ग्राम्स की ओवर वेट की वजह से उनको बाहर कर दिया गया। तो हमको इससे पता लगता है कि फ़िज़िकल फिटनेस और हमारी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है उसको लेके। तो बिल्कुल फिजिकल इम्पोर्टेंस है और ये जानना चाहिए। आप लोग क्या सोच रही हैं अब, चूँकि अब तो एक मेडल से दूर हो गए? I think that this incident which happened with Vinesh Fogart is a reminder to all the people, either they are sports person or not, to keep their bodies healthy, because there are n number of benefits of keeping your body healthy. बिल्कुल, यानी कि बॉडी को हेल्दी रखना है। और इस तरह से आप क्या सोच रहे हैं कि एक कम से कम मेडल तो आता? हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन ये ऑलरेडी हमारे साथ एक बार हो चुका है। बैडमिंटन मेंस सिंगल्स में लक्ष्य सेन लॉस्ट बाय अ सिंगल मैच due to which he did not reach the podium. So it is just that little negligence. किसी तरह की इसमें आप साजिश मान रहे, कोई कमी है? हाँ, हमारे अंदर ही एक कमी है, हमारे अंदर एक नेग्लिजेंस है जो हम अवॉइड करते हैं। हम फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ को भी। देखिए आप दिव्या, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चूंकि ये सब युवा खिलाड़ी हैं और चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग की बात है या फिजिकल हेल्थ की बात है जो ये बता रहे हैं, उससे अगर इतर देखा जाए तो कम से कम ओलंपिक में जो खिलाड़ी पहुंचते हैं पूरे प्रॉपर तरीके से उनकी ट्रेनिंग है, उनकी तैयारी, उनका प्रिपरेशन होता है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा खबर आई है, रामानुज, ये छोटे छोटे खिलाड़ी भी भविष्य के खिलाड़ी हैं जो कि अलग अलग रिएक्शंस दे रहे हैं। वापस आते हैं, अतुल यादव गोंडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, वजन बढ़ा हुआ बताकर डिस्क्वालीफाई कर देना, क्या ये हजम होता है गोंडा की जनता को? क्योंकि सेमीफाइनल तक उनका वजन ठीक था, लेकिन अचानक से डिस्क्वालीफाई हो जाना। देखिए, जहां एक तरफ कल विनेश फोगाट ने एक के बाद एक 3 मैच क्वालिफाई किए, पूरा देश ये उम्मीद लगाया बैठा था कि विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला करके पहली भारतीय महिला बनेंगी और भारत का नाम रोशन होगा। हमारे साथ गोंडा की जनता है, इनसे बात करते हैं। किस तरीके से 100 ग्राम ज्यादा होना देश को नुकसान, किस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे मामले को? देखिए, आज 140 करोड़ जनता के लिए दुख का दिन है। कल तक हम लोग जश्न मना रहे थे कि 4 बाल की गोल्ड लाने वाली को विनेश फोगाट ने हरा के फाइनल में प्रवेश किया, और रातों रात उसका 100 ग्राम वजन घट जाना ये देश के लिए भी दुखद है। और भारत सरकार से मैं मांग करता हूं, ओलंपिक में सख्ती से अपनी बात रखें। आपको क्या लगता है कि कहीं साजिश है या फिर जानबूझकर इस तरीके से किया गया है? ओलंपिक समिति के द्वारा लिया गया ये जो निर्णय है, मुझे तो पूरी तरीके से साजिश लगती है, अंतरराष्ट्रीय साजिश लगती है। और ओलंपिक समिति के निर्णय को सरकार को पूरी तरीके से गहनता से जांच करवानी चाहिए। और इस घड़ी में हम अपनी पूरी बेटी के साथ हैं, पूरा भारत देश उसके साथ है। अच्छा, क्या आपको उम्मीद थी विनेश फोगाट से, जो अब इससे उम्मीद टूट गई है? किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं पूरे मामले को? हमें नहीं, हमारे भारत के पूरे जन को ये बहुत बड़ी उम्मीद थी कि विनेश फोगाट एक बहुत उम्दा खिलाड़ी थी जो आज निश्चित तौर पे भारत को गोल्ड मेडल दिलाती, लेकिन किसी साजिश का शिकार हुई है। जो महज 100 ग्राम या 50 ग्राम वजन होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से षड्यंत्रकारी यंत्रों द्वारा उनको आज बाहर किया गया है, ये भारत के लिए बहुत दुखद और निराशाजनक बात है। आपको किस तरीके से लड़ा? इस तरीके 100 ग्राम वेट की वजह से उनको बाहर कर दिया गया, 3 मैच जीते हैं, क्या मेडल मिलना चाहिए था उनको? नहीं, मेडल तो मिलना चाहिए था, लेकिन 3 मैच जीती, इसलिए 100 ग्राम वजन कोई मायने नहीं रखता है। आपको क्या लग रहा है? खिलाड़ी है, बच्चों को नहीं, किस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे मामले को? देखिए, विनेश फोगाट को हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो महिला खिलाड़ी है, अभी महिला खिलाड़ी हमारे यहाँ से जो गई हैं, विनेश फोगाट को 100 ग्राम जिनका वेट ज्यादा हो गया निकाल दिया गया है, तो हम लोग को क्या करना है, उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि महिलाएं जो आगे हैं वो उनसे मोटिवेट होकर वो भी आगे जा सकें। आपको क्या लगता है, किस तरीके से साजिश है या फिर इस तरीके से लगातार जो आरोप लग रहे हैं वो किस तरीके से?
नहीं, हमें लग रहा है कि कोई ना कोई साजिश जरूर है, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद बिल्कुल। तो गोंडा के लोगों के भी अलग अलग रिएक्शंस हैं, कोई साजिश की आशंका भी जाहिर कर रहा है। पारस गोयल के पास चलते हैं, मेरठ से हमारे से जुड़े हुए हैं। पारस, मेरठ की जनता क्या सोच रही है? गोल्ड की आस टूट गई है। देखिए, बिल्कुल ओवरवेट होने की वजह से विनेश फोगाट को बाहर कर दिया गया। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय लेफ्टिनेंट अल्ताफ उमर। अल्ताफ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे विनेश फोगाट को बाहर कर दिया? देखिए, बहुत ये खबर हम तक को मिल रही है दोपहर से, बहुत ही बुरा लगा। और कहीं ना कहीं हम देश के लिए इससे बुरी खबर कोई नहीं हो सकती थी, क्योंकि आज वो फाइनल में जाने वाली थी और फाइनल में भी हमारा गोल्ड पक्का था। और बस एक छोटी सी चूक ये रह गई है, ये तो विनेश और जो कोचेज वहाँ पर थे वो ही बहुत अच्छे से बता पाएंगे भाई किस वजह से ये चूक हो पाई है, क्योंकि हम बहुत दूर हैं उससे और उससे कोई कांटेक्ट भी हमारा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि पहले दिन भी उसने अच्छे से अपना वेट दिया है और उसके बाद उसने फाइटें भी बहुत अच्छे से निकाली हैं और फाइनल में वो लड़की गई है तो पूरी जान उसने लगा दी है इस मेडल के लिए। लेकिन कुछ कमी की वजह से, कुछ थोड़ी सी कहीं कमी की वजह से आज वो फाइनल में नहीं खेल रही है। और ये एक रूल है ओलंपिक का कि अगर आप 50 केजी में है तो उससे 50 ग्राम या 1 ग्राम भी अगर आपका वजन ऊपर आता है तो आप नहीं खेल सकते हैं। आपको वापस जाना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी अपने वजन के लिए, उसको आपको 500 आपको दिखाना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको, एक सेमीफाइनल तक वेट ठीक था और एकदम से ओवरवेट आना, 100 ग्राम वजन ज्यादा आया उनका, क्या कुछ साजिश हुई है कुछ ऐसा? नहीं, साजिश वगैरह कुछ नहीं है इसमें। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। साजिश में इसमें नहीं हो सकती है, क्योंकि पहले दिन भी आपने वेट दिया है, ठीक है। उससे पहले आपने कितना वजन कम किया है? 4 या 5 किलो आपने वजन कम किया, 50 किलो आपने दिखाया। उसके बाद आप प्रिपेयर हो रही है अपनी फाइट के लिए। प्रिपेयर के लिए आपको अपनी बॉडी में एनर्जी डालनी पड़ेगी जब आप लड़ पाएंगी दूसरी रेसलर से, क्योंकि सामने वाली रेसलर। बिल्कुल। तो अलग अलग रिएक्शंस लगातार लोगों के सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि साजिश है, कोई कह रहा है कि उनके साथ राजनीति हुई है। ये जांच का विषय है, लेकिन भारत की बेटी पर हर किसी को गर्व है, हर हिंदुस्तानी को गर्व है और जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है उसके लिए हर कोई उनकी वाहवाही कर रहा है। इसी के साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए, बातचीत करवाने के लिए। और माहौल टाइट है में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।